So we had to start the revision of triangles. So हम लोग पहले तो एनसीईआरटी पे ही फोकस करेंगे. तो एनसीईआरटी एक बार रिवाइज करने के बाद फिर हम लोग असाइनमेंट शीट्स और जिसमें आर डी शर्मा वगैरह के क्वेश्चंस हैं वो सब हम लोग एक बार देखेंगे. ठीक है. सो एनसीईआरटी के भी सारे क्वेश्चंस नहीं करेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसी पे हम लोग पहले फोकस करेंगे, जिनका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है आने का एग्जाम में. Yep. सो ट्राइंगल्स में जो सबसे बेसिक चीजें हम लोग पहले भी कर चुके हैं, बट जस्ट टू रीइटरेट ऑल दोस थिंग्स. सो कोई भी दो फिगर सिमिलर कब होता है? जब उसका शेप सेम होता है बट साइज डिफर कर सकता है, राइट? और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो हुए, तो देयर आर टू काइंड ऑफ फिगर्स. वन इज कॉन्ग्रुएंट फिगर्स एंड अदर इज सिमिलर फिगर्स. सो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो हम लोगों ने पिछली क्लास में 9th क्लास में किया है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो होते हैं जिनका शेप और साइज दोनों सेम होता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर सकें. ऐसे फिगर्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं. मतलब एक फिगर को कट करके दूसरे पे रखें तो अगर उसको एग्जैक्टली सुपर इम्पोज कर देगा, तो ऐसे दो फिगर्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं, राइट? सो and what are similar figures is the similar figures have the same shape will be same but not necessarily the same size. They may have different size. So all the circles which are present, है ना, ये सारे जितने भी सर्कल्स आप देख रहे हो, ये सारे सर्कल्स सिमिलर सर्कल्स हैं, सिमिलर फिगर्स हैं, क्योंकि इन सब का शेप सेम है, साइज अलग अलग है, इनका रेडियस अलग अलग है. उसी तरह जितने भी दुनिया में स्क्वायर्स हैं, सो ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर फिगर्स. All the squares are also similar figures because they have the same shape and the size are different. All equilateral triangles, so all the equilateral triangles, they have the similar shape, size, but the size is different. Okay. Now from the above we can say that all congruent figures are similar. Why? Because congruent figures में shape and size both are same. Same shape and same size. और जो similar figures हैं, they have same shape but not necessarily the same size. So that means all congruent figures will be similar, but all similar figures may not be congruent. Okay. Is this clear to everyone? Clear है बच्चों? Yes, sir. Okay. So two polygons, in fact कोई भी दो figure अगर है closed figure, so any two polygon of the same number of sides are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio. So कोई भी दो polygon को हम लोग similar तब बोलेंगे जब same number of sides हो उनके, है ना, number of sides same होना चाहिए, corresponding angles are equal, they have same angles, right? So corresponding angles are equal and corresponding sides are in the same ratio or are in proportion. Then these two, any two polygons are called similar figures. Now, if we come down to similarity of triangles, two triangles are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio or are proportion. So, in general, कोई भी polygon सिमिलर तब होगा जब उनका जो एंगल्स है, corresponding angles, they are equal and the corresponding sides are in the same ratio. Then we say that these two polygons are similar. And similarity of triangles में two triangles are similar if their corresponding angles are equal and the corresponding sides are in the same ratio. Because triangle is a type of polygon,
सो जो पॉलीगन के लिए ट्रू है वो ट्राइंगल के लिए भी ट्रू होगा। हम लोग जो इस क्लास में पढ़े हैं वो ट्राइंगल का ही पढ़े हैं, तो उसी पे हम लोग बात करेंगे। Now, if corresponding angles of two triangles are equal, then they are known as equiangular triangles. A famous Greek mathematician, Thales, gave an important truth relating the two equiangular triangles. तो थेल्स ने क्या बताया कि द रेशियो ऑफ एनी टू corresponding sides in two equiangular triangles is always same. मतलब अगर दो ट्राइंगल के एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो उनके साइड्स हमेशा प्रोपोर्शनल होंगे. रेशियो ऑफ द साइड्स will be the same for two equiangular triangles. So this theorem was given by Thales. Now it is believed that he had used a result called the basic proportionality theorem, जिसको अब हम लोग Thales theorem के नाम से भी जानते हैं. तो अगर आपको basic proportionality theorem की जगह Thales theorem पूछ लें कि you know prove the Thales theorem, then you will have to, it's same as basic proportionality theorem, so they are one and the same. ध्यान रखना है इस चीज को, कभी कभी बच्चे थेल्स थ्योरम में कंफ्यूज कर जाते हैं. और एक बार आप फिर से बता सकते हो, मेरे को समझ नहीं आया. क्या चीज नहीं समझ में आया इसमें? सर सर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो आपने बताया ना सर, सेम रेशियो होता है उसका मतलब सेम साइज होगा. अभी तो हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बताएंगे. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बताया कहाँ है? वो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम नहीं है बालक, वो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का ये है कि सिमिलर ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे. यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के लिए लिखा हुआ है. कहाँ सोए रहता है क्या? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम तो अभी आगे करेंगे. ये जो चीज है, दिस इज व्हाट द थेल्स said with respect to similarity of triangles, not with respect to basic proportionality theorem. थेल्स ने ये बोला कि अगर दो ट्राइंगल इक्वी एंगुलर है तो उनके जो रेशियोज हैं साइड्स के वो सेम होंगे. ये दो ट्राइंगल की बात हो रही है. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जब हम लोग करते हैं तो वो एक ही ट्राइंगल में बात कर रहे होते, दो अलग अलग ट्राइंगल के बारे में बात नहीं कर रहे होते. आया समझ? यस सर. सो थ्योरम 6.1 ये बेसिकली हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है. ठीक है. और इसी को हम लोग थेल्स थ्योरम भी कहते हैं. राइट. सो थ्योरम क्या कहता है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, the to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. Means if we draw a line D which is parallel to BC, then this line D will divide AB and AC in the same ratio. So basic proportionality theorem कहता है if DE is parallel to BC, then AD by DB will be equal to AE by EC. This is what is basic proportionality theorem. Clear है? अगर एक line, if a line is parallel to one of the sides of a triangle, then this line will divide the other two sides of the triangle in the same ratio. That means AD by DB will be equal to AE by EC. Is the statement clear to everyone? समझ में आया? जस बाबू आया समझ में? हाँ सर, वो मैं बस लिख रहा हूँ. ये मैं शेयर भी कर लूंगा पीपीटी, बाद में भी लिख सकते हो, अभी समझते जाओ. यस सर. सो अब इसका प्रूव हम लोग देखेंगे. तो यहाँ बेसिकली जो इसका प्रूव इंपॉर्टेंट है, मतलब आता है एग्जाम में, है ना, तो यू नीड टू डू इट प्रॉपरली. सो यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहले तो लिखेंगे गिवन क्या है ना. गिवन है हमारा DE इज पैरेलल टू BC, है ना. टू प्रूव करेंगे, टू प्रूव
AD by DB is equal to AE by EC. सबको विजिबल है ना स्क्रीन प्रॉपरली? फॉन्ट साइज भी ठीक है, ज्यादा बड़ा इससे बड़ा तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, सबको दिख रहा है? सर दिख रहा है एकदम सही से। अच्छा ठीक है। सो अब हम लोग दो कंस्ट्रक्शन करते हैं यहाँ पे। सो टू प्रूव के बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, राइट। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये डीएम को एई के परपेंडिकुलर बना लेते हैं और ईएन को एडी के परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और उसके अलावा डीसी को ज्वाइन कर लेंगे और बीई को ज्वाइन कर लेंगे। सो सबसे पहला कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ EN perpendicular to AD and DM, ठीक है, this DM perpendicular to AE. उसके अलावा you have to join BE and DC. Now, proof of this. First of all, area of triangle ADE, area of triangle ADE divided by area of triangle BDE is equal to ADE का जो एरिया है, हम लोग क्या करते हैं, अगर AD को बेस लेंगे और EN को हाइट लेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस AD ले लिया और हाइट जो है एल्टीट्यूड EN को ले लिया, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE में BD हमारा बेस है और हाइट इस केस में भी EN ही है ना, क्योंकि ये एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल की तरह समझो इसको। तो ये मान लो अगर बेस है तो यहाँ पे जो हाइट होगा, दैट हाइट विल बी एग्जिस्टिंग आउटसाइड द ट्राइंगल। तो सेम थिंग इज हियर, ये एक ट्राइंगल है BDE, इसका जो हाइट है ये EN है, सेम हाइट है, जो कि ADE का हाइट था वही BDE का भी हाइट है, EN ही। तो इसको हम लोग लिखेंगे हाफ इंटू बेस BD इंटू हाइट EN। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। उसके बाद हम लोग फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, ये हमारा हाफ ऑफ, अब ये AD के जगह बेस ले लेंगे AE और जो हाइट लेंगे वो DM लेंगे, तो हाफ ऑफ AE इंटू DM डिवाइडेड बाय DEC में हाफ ऑफ बेस लेंगे EC और हाइट तो DM ही लेंगे। अब यहाँ पे बेस DEC वाला जो ट्राइंगल है इसमें बेस ले लिया AC और हाइट ये DM के बराबर ही लिया, ठीक है। ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया, ठीक है। अब देखो ये हाफ और हाफ कैंसिल, EN और EN कैंसिल, इधर भी हाफ हाफ कैंसिल, DM और DM कैंसिल, तो दिस इज इक्वल टू AD अपॉन BD एंड दिस इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब ये जो दो ट्राइंगल है नीचे, ये देखो, ये BDE वाला जो ट्राइंगल है और DEC वाला जो ट्राइंगल है, बिकॉज ये लाइन इसके पैरेलल है, DE BC के पैरेलल है, तो टू ट्राइंगल्स विच आर ऑन द सेम बेस, दोनों ट्राइंगल का बेस DE है ना। जो BDE वाला जो ट्राइंगल है, ये जो BDE ट्राइंगल तुम लिखोगे, सिंस ट्राइंगल BDE and triangle DEC lie on the same base D and are between same parallels,
DE parallel to BC. Hence, area of triangle BDE is equal to area of triangle DEC. ठीक है, सो ये थ्योरम हम लोगों ने पिछले साल पढ़ा था. सो ये हम लोग थर्ड इक्वेशन कर लेते हैं. अब ये जो 1, 2 एंड 3 को कंबाइन कर दो. सो फ्रॉम 1, 2 एंड 3, अब देखो आप BD DEC का एंगल, सॉरी एरिया इक्वल हो गया. AD इक्वल है तो LHS दोनों साइड का इक्वल हो गया, तो RHS भी इक्वल होगा. मतलब AD बाय BD will be equal to AE by EC. So this is what is known as basic proportionality theorem. Clear है बच्चों? Yes, sir. देखो इसको हम लोग सिमिलैरिटी से भी प्रूफ कर सकते हैं, है ना. बट सिमिलैरिटी बिकॉज हमारे एनसीईआरटी में बाद में आता है, तो जनरली इसी से प्रूव करते हैं. यू कैन प्रूव इट यूजिंग सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स एज वेल. अगर भूल जाओ इसको और सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हैं. मैं करके अभी दिखा भी दूंगा तुम्हें. बोर्ड एग्जाम्स में तुम कर सकते हो उस मेथड से भी. सबने ये समझ लिया और लिख लिया? यस सर. लेट्स से तुम्हें ये ना, ये कंस्ट्रक्शन वगैरह भूल गए हो, तुमने इतना अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया है. अब तुम्हें ध्यान नहीं आ रहा है कि कैसे करना है. अब आप ये देखो कि हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है, राइट, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि DE इज पैरेलल टू BC. ये दोनों पैरेलल है, तो ये जो एंगल होगा ये इसके बराबर होगा. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. ये जो एंगल है ये इसके बराबर होगा, राइट. सेम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. ठीक है ना. तो ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है. तो बाय AA सिमिलैरिटी थ्योरम, मैं शॉर्टकट में ही लिख रहा हूं, ट्राइंगल ADE is similar to triangle ABC. This is by AA similarity theorem. दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया. अब जब बिकॉज दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तुम्हारा, तो इससे क्या आ जाएगा, AD बाय AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, है ना. corresponding sides of similar triangles are proportional. अब AD बाई AB आ गया. अब आप क्या करो, इसका रेसिप्रोकल ले लोगे. Taking reciprocal, you will have AB by AD is equal to AC by AE. Subtracting 1, दोनों साइड से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो. AB by AD minus 1, AC by AE minus 1. So ये हो जाएगा हमारा AB minus AD divided by AD, AC minus AE divided by AE. So AB से AD को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो ये हमारा हो जाएगा BD डिवाइडेड बाय AD, और AC से AE को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, मतलब EC डिवाइडेड बाय AE. फिर से हम लोग इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं. अगेन टेकिंग रेसिप्रोकल, वी विल हैव AD बाय BD इज इक्वल टू AE बाय EC. तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं इसको प्रूव. क्लियर है बच्चों? हाँ सर, बस 1 मिनट में लिख लेता हूँ.
रिवीजन बेसिकली हम लोग ये जिस तरह से पीपीटी पे कर रहे हैं वैसे ही करेंगे, क्योंकि उसमें क्या है कि स्पेसिफिक क्वेश्चंस तुम लोग को भी पता रहेगा कौन सा क्वेश्चन हम डील कर रहे हैं। अगर हमको किसी और किताब से भी लेना है, या किसी लेट से आर डी शर्मा से, या एम एल अग्रवाल है, आर एस अग्रवाल है, ये सब किताबों से लेना है, या किसी प्रीवियस ईयर्स पेपर से लेना है, या जैसे भी, तो वो हम यहाँ पे लेना ज़्यादा आसान रहेगा। तुम लोग ज़्यादा उसको बाद में रिवीजन के लिए तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये स्लाइड्स हम शेयर करते रहेंगे तुम्हारे साथ, तो ठीक है ना। तो रिवीजन के दौरान हम इसी पे ही करेंगे क्लास। अगर किसी को समझने में कहीं प्रॉब्लम आएगी इसमें, वैसे तो आनी नहीं चाहिए, तो मैं बोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि ये क्वेश्चन सर बोर्ड पे भी एक बार समझा दीजिए, तो मैं समझा सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लिख लिया बेटा? सर बस एक Yes, सेकंड। sir. How are your preparations going on for annual exams? आप लोग का जो प्री बोर्ड वगैरह होने वाला है, फर्स्ट प्री बोर्ड, कैसा चल रहा है प्रिपरेशन उसका? ठीक चल रहा है सर, 23rd से शुरू है मेरे तो। अच्छा, सर बहुत अच्छा चल रहा है। तो अभी तुम लोग का स्कूल वाला तो कैंसिल हो गया होगा, क्योंकि केसेस तो बहुत बढ़ रहे हैं अभी। और कुछ आया ही नहीं है ऐसा स्कूल में, वो बोल रहे हैं अभी भी ऑफलाइन ही होंगे। नहीं नहीं, ऑफलाइन तो नहीं होगा, क्योंकि बाकी सारे स्कूल्स में मतलब बेसिकली एवरीथिंग इज गोइंग टू क्लोज डाउन अगेन, सो देयर इज नो पॉइंट टेकिंग। अभी तो नॉर्मल जो खुले हुए हैं वो भी बंद कर रहे हैं, तो जो बंद है उसको क्या खोलेंगे? हाँ सर, हमारा स्कूल ही यस बंद हो सर, गया। अभी ऑफलाइन लॉकडाउन स्टार्ट होने हुआ के था, लिए फिर कह रहे हैं हमने सेकेंड वेव की वजह से। So there is a अभी surge in COVID numbers, so I don't think they'll take that risk. So they are not clear abhi, but eventually they'll send you a message that the exams will be either online or they will cancel it. So that's the सर आपके हिसाब से बोर्ड्स कब होंगे? मेरे हिसाब से तो देखो अप्रैल में होने का चांस है। अप्रैल में सी इट्स नॉट अबाउट वी गाइज मे बी गेटिंग वैक्सीन्स अर्लियर, बिकॉज हम लोग दिल्ली के पास हैं और थोड़ा एनसीआर में थोड़ा ज्यादा इन सब चीज का है, और हम लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं शायद। बट बिकॉज बाकी सारे छोटे शहरों में सबको नहीं अवेलेबिलिटी तब तक हो पाएगी, तो इट विल टेक अनदर 5-6 months फॉर पीपल टू have an access for vaccine. So even though we may get that access at the end of December or start of January, बट बाकी शहरों में तो नहीं पहुंचेगा, और जो गरीब लोग हैं वहां तो नहीं पहुंचेगा। तो एग्जाम्स मेरे हिसाब से तो इट विल बी आइदर इन द एंड ऑफ अप्रैल और अर्ली फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ मे। दैट्स व्हाट माय थिंकिंग इज अभी, बट यू नेवर नो, ओके सर। हो सकता है उससे भी ज्यादा डिले हो जाए। सर उससे अर्ली भी हो सकता है क्या? नहीं, अर्ली तो कभी भी किसी एक्चुअल डेट से तो अर्ली नहीं होगा, मतलब जो मार्च में डेट है उसके पहले तो नहीं होगा। अब या तो वो मार्च के बाद होगा, कितना बाद होगा ये नहीं पता हमें, बट एक्चुअल टाइम पे तो नहीं होगा। देखो बाकी सारे एग्जाम्स आगे बढ़ रहे हैं, मतलब तुम लोग फॉलो नहीं करते होगे, बट एक एग्जाम होता है KVPY, वो एग्जाम नवंबर में होता है, अब वो जनवरी एंड में हो रहा है। ठीक है, मतलब ये भी बेसिकली CBSE NTA ही कंडक्ट कराती है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही कंडक्ट कराती है। और उसके अलावा जो NTSC है वो भी आगे बढ़ गया था, पहले नवंबर में हुआ करता था, दिसंबर 12 को है ना NTSC, तो दिसंबर 12 में चला गया है। वो भी ऑनलाइन उन्होंने कर दिया है, पहले तो सेंटर पे हुआ करता था। तो अभी देखते हैं क्या है कैसे है। So I think there is huge hue and cry. So there will be the notification coming from the government about the tentative dates of exams or other things. तो वो मेरे ख्याल से एंड ऑफ नवंबर तक तुम लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि कब है एग्जाम। डोंट वरी अबाउट। अभी तो हमारे स्कूल में नोटबुक्स के लिए इतना कर दिया, हमें नोटबुक की सबमिट करने में हालत खराब हो गई। नहीं तो वो सब टाइम पे करो, बिकॉज व्हाई आई हैव टाइम एंड अगेन टोल्ड यू कि उन सब पे ज्यादा फोकस करो, बिकॉज
उन सब पे मार्क्स ही ज्यादा कैलकुलेशन के चांसेस है। देर मतलब यू नेवर नो, हो सकता है बोर्ड भी फिर कल को बोल दें कि भाई कैंसिल हो गया बोर्ड। अगर मान लो कैंसिल हो गया तो मार्क्स किस बेसिस पे मिलेगा? तुम्हारे नोटबुक्स पे मिलेगा, तुम्हारे इंटरनल एग्जाम्स पे मिलेगा। तो प्लीज इंश्योर कि ये सारी चीजें तुम्हारे बहुत अच्छी से की हो। मैंने तुम्हें 2-3 महीने पहले से बोल रखा है कि इंटरनल एग्जाम्स पे बहुत फोकस करो, किसी भी इंटरनल एग्जाम्स में खराब नंबर नहीं आने चाहिए, और अपने नोटबुक्स को बहुत अच्छे से मेंटेन करो। टीचर्स के साथ काफी इंटरेक्शन रखो, ट्राई टू इंटरेक्ट विद देम, बी इन देयर गुड बुक्स। बी इन देयर गुड बुक्स एज इन कि अगर बटर मारने की जरूरत पड़े तो बटर भी मारो, मतलब लगे कि यू आर इन्वॉल्व इन क्लासरूम लर्निंग एक्टिविटी। कीप ऑन आस्किंग डाउट्स। ओके, बी इन लाइमलाइट, उनके नजर में होने चाहिए तुम, है ना? तब फिर उनको लगेगा कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है, इसको नंबर अच्छे हो देने हैं। आ रहा है समझ में बच्चे? यस हाँ। सर। बदमाशी और शैतानी थोड़ा सा बच के रहें, ना करें इस साल एटलीस्ट। ऑनलाइन है ना सर, हो ही नहीं पा रही कोई। उसमें भी तुम कौन सा छोड़ देते होगे बालक। चलिए, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. So this is the converse of basic proportionality theorem. So converse of basic proportionality theorem क्या कहता है? If a line divides any two sides of a triangle, let's say हमारे पास एक triangle है और ये एक line है, let's say ये triangle ABC है, and there is this line DE. So let's say if given is, if AD upon DB is equal to AE upon AC, then this line DE will be parallel to BC. So कह रहा है if the line divides any two sides of a triangle, मान लो ये एक लाइन है, ये दोनों साइड को जो डिवाइड कर रहा है सेम रेशियो में, मतलब AD by DB is equal to AE by EC। अगर ये लाइन जो है इस बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, देन दिस लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। थर्ड साइड BC है, उसके पैरेलल होगी। ओके, इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रूफ आता नहीं है एग्जाम में इसका, बस आपको थ्योरम जानना है और उसका एप्लीकेशन जानना है। क्लियर है? थ्योरम समझ में आ गया? सर आप एक और बार एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज? ये कह रहा है थ्योरम, इफ अ लाइन डिवाइड्स two sides of a triangle in the same ratio, means if this line DE divides AB and AC in the same ratio, that means if AD by DB is equal to AE by EC, this is given, right? Then you can say that DE will be parallel to BC. यहाँ पैरेलल लाइन गिवन नहीं था, यहाँ पे गिवन क्या था कि रेशियो इक्वल है, तो रेशियो इक्वल होगा तो लाइंस पैरेलल होंगे। और ओके सर। बीपीटी क्या था? उल्टा था इसका, कि अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो इक्वल, इसी का उल्टा। वहां पे गिवन में क्या था कि डीई पैरेलल टू बीसी, वहां हमने प्रूव किया था कि एडी बाई डीबी इज एई बाई ईसी। यहाँ गिवन ये है कि एडी बाई डीबी इज इक्वल टू एई बाई ईसी, हमें प्रूव करना है कि डीई बीसी के पैरेलल है। प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है तो नहीं आएगा, तो तुम्हें बस ये जानना है कि अगर साइड्स इक्वल हैं प्रोपोर्शन में, जो ये एडी और डीबी और एई और एसी का रेशियो सेम है, तो डी लाइन जो है वो बीसी के पैरेलल होगा। इसको हम लोग यूज कर सकते हैं एज अ थ्योरम। ओके सर। Now the examples, all the three examples are important, have different concepts in each of these examples. We'll discuss each of these. तो इसको तो हम लोग अभी बीपीटी जब प्रूव कर रहे थे सिमिलैरिटी से, तो वहां पे हम लोग ऑलमोस्ट ऐसा चीजें किए भी थे। क्वेश्चन कह रहा है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स side AB and AC of triangle ABC at D and E. So let's say we have a triangle ABC and there is a line which intersects AB and AC at D and E respectively and is parallel to BC. ये जो लाइन DE है ये BC के पैरेलल है, हमें प्रूव करना है। So what is given is DE is parallel to BC. We have to prove AD by AB
is AE by AC. अब देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, AD by AB is equal to AE by AC प्रूफ करना है। इसको भी हम लोग जो सिमिलैरिटी कर लिए होते तो सिमिलैरिटी से भी कर सकते थे, डायरेक्टली आ जाता। तो एग्जाम में अगर आएगा तो तुम सिमिलैरिटी से भी प्रूफ कर सकते हो, क्योंकि वहां यहाँ ये नहीं लिखा होगा कौन से मेथड से कर, ठीक है। अदरवाइज अभी हम लोग बिकॉज नॉर्मल तरीके से करते हैं कि भाई ADE, ये जो DE और BC बिकॉज पैरेलल है, तो हम लोग को बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, देखो सिंस DE is parallel to BC, by basic proportionality theorem we will have AD by DB is equal to AE by AC. अब आप क्या करोगे, दोनों तरफ ये ले लोगे रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल we will get DB by AD is equal to AC by AE. अब हम लोग में +1 दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, DB by AD +1 is equal to EC by AE +1. सो ये क्या हो जाएगा, DB plus AD divided by AD is equal to EC plus AE divided by AE, है ना। DB plus AD ऐड कर दोगे तो ये हो गया AB divided by AD, और EC plus AE को कर देंगे तो AC divided by AE। उसके बाद टेकिंग रेसिप्रोकल अगेन, फिर से अगर हम लोग रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा AD डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय AC। यही प्रूफ करना था। क्लियर है बच्चों? यस सर। डन? नहीं सर, 1 मिनट लेकर आओ। जल्दी जल्दी करो बालक। Done, sir. ऐसे भी ये वीडियो भी अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे। उसके अलावा ये जो है PPT, इसको भी शेयर कर लेंगे गूगल क्लासरूम में। तुम लोग सब गूगल क्लासरूम वाले में तो हो ही? Yes, sir. तो उसमें भी अपलोड कर लेंगे, वहां से हम तो हमेशा रिवाइज कर सकते हो इन सब चीजों को। तो सर मतलब ये गूगल क्लासरूम पे भी मिलेगा? वहां पे भी मिलेगा। हम तुमको ये व्हाट्सएप ग्रुप में भी अभी भेज देंगे, बट व्हाट्सएप ग्रुप ओके में सर। तो खो जाता है थोड़े दिन बाद, इतना पीछे चला जाता है। तो गूगल क्लासरूम में भेज देंगे, वहां पर से तुम लोग कभी भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, जो भी चैप्टर पढ़ना है वहां अपलोड कर देंगे। अच्छा, लिख लिया सर। तुमने? हाँ सर। अब देखो सेम चीज को अगर मान लो एग्जाम में आया तो हमें तो ये बताया हुआ नहीं रहेगा कि ये सिमिलैरिटी के पहले पढ़ाए थे तो सिमिलैरिटी को यूज ना करो, ऐसा तो है नहीं, है ना। तुमको तो पूरा कॉन्सेप्ट पता चल चुका है एग्जाम में, तुम कोई भी मेथड से कर सकते हो। तो दूसरा जो आसान मेथड है इसको करने का, है ना। इनफैक्ट जब हम लोग कोई आगे प्रूफ करते हैं ना, वो यहाँ पे भी इस वाले चीज को बहुत बारी यूज आता है, तो वहां पे भी ये यूज कर सकते हो। देखो गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन DE is parallel to BC, so DE is parallel to BC। इससे ये जो एंगल है इसके बराबर हो जाएगा और ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। So given DE is parallel to BC and we have to prove AD by AB is equal to AE by AC. Now the proof of this is
in triangle ADE and triangle ABC. अब इन दोनों ट्राइंगल में क्या है देखो, एंगल ADE will be equal to ABC, ठीक है, corresponding angles by, so this is due to corresponding angles, these two angles are equal, they are corresponding angles because DE is parallel to BC. Similarly, AED will be equal to angle ACB. Same, both the angles are corresponding angles. So by AA similarity, so we have triangle ADE is similar to triangle ABC. दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, इससे अब हमारा क्या आ जाएगा, AD by AB is equal to AE by AC, corresponding sides of similar triangles are proportional. तो डायरेक्टली प्रूव हो गया है, रेसिप्रोकल +1 ये सब करने की जरूरत नहीं है। क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये देखो बहुत कॉमन एग्जांपल है, तुम लोगों को तो इसका सबको कंस्ट्रक्शन तक याद होगा। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC. E and F are points on the non-parallel sides AD and BC, ठीक है, respectively such that EF is parallel to AB. तो given क्या है हमें कि EF is parallel to AB, और because AB DC के parallel है तो EF AB और DC दोनों के parallel हो गया, ठीक है। Now we have to show that AE by ED is equal to BF by FC. This is what we have to prove, right? So हमारा जो given है वो हो गया EF parallel to AB parallel to DC, और जो प्रूफ करना है हमें AE by ED is equal to BF upon FC. अब हम लोग इसको ज्वाइन कर देते हैं, AC को, AC या BD किसी को भी ज्वाइन कर दोगे सेम चीज है, राइट? तो हम लोग AC को ज्वाइन कर देते हैं एक लाइन से, राइट? सो लेट्स से ये यहाँ पे G पॉइंट को हिट कर रहा है। अब इन ट्राइंगल हम लोग ADC एक ट्राइंगल लेते हैं, यहाँ पे सिंस EG is parallel to DC, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम EG क्योंकि DC से पैरेलल है तो दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब AE by ED is equal to AG upon GC, फर्स्ट इक्वेशन। अब उसके बाद इन ट्राइंगल CAB, ये जो राइट साइड वाला जो ट्राइंगल है CAB, इसको कंसिडर करते हैं। यहाँ पे ये जो GF है ये AB के पैरेलल है। इन ट्राइंगल CAB, since GF is parallel to AB, so by basic proportionality theorem we have
CF upon FB is equal to CG upon GA. ठीक है, ना इसका हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, टेकिंग रेसिप्रोकल, क्योंकि यहाँ पे इस RHS का उल्टा आ गया यहाँ पे, तो हम लोग इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे, हमें मिल जाएगा AG अपॉन GC इज इक्वल टू BF अपॉन FC. ठीक है, सेकेंड पार्ट ना, अब इससे बाय 1 and 2, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखो तो यहाँ AG बाई GC और AG बाई GC दोनों इक्वल हो गया, तो फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. गुड. ये इस तरह के क्वेश्चंस काफी, मतलब तुम देखोगे इस तरह, ये जो एप्लीकेशन है, खासकर ये जो डायगोनल बना के 2 बार BPT यूज करने का, ये काफी यूजफुल है, काफी जगह यूज होता है. अब यहाँ पे देखो, इन दिस एग्जाम्पल PS बाय SQ इज इक्वल टू PT बाई TR, ये दे रखा है, ये कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का एप्लीकेशन है. तो जो गिवन है हमारा यहाँ पे, PS अपॉन SQ इज PT अपॉन TR. ठीक है, और इसके अलावा जो गिवन है एंगल PST इज इक्वल टू PRQ, ये गिवन है. वी हैव टू प्रूव दैट PQR इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. To prove triangle PQR is an isosceles triangle. ठीक है, now इसका प्रूफ देखिए. Since PS upon SQ, so since PS upon SQ is equal to PT upon TR, so by converse of basic proportionality theorem हमें क्या मिल जाएगा, ST is parallel to QR. अब ST अगर QR के पैरेलल आ गया, ये इसके पैरेलल आ गया, तो ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो इससे आ जाएगा एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PQR. दिस इज बिकॉज दे आर द corresponding angles and corresponding angles are always equal. Now PST is equal to PQR, but angle PST is also equal to PRQ. ये given था, ठीक है ना, 1 2. So if we combine both of this from equation 1 and 2, we will have, देखो, angle PQR will be equal to angle PRQ. So this means PQ is equal to PRQ because sides opposite to equal angles are equal. PQ हमारा PR के बराबर हो जाएगा, है ना. This implies triangle PQR is an isosceles triangle.
Done, sir. Done, sir. ओके बेटा, Done, sir. Done. ठीक है बच्चा। अब ये जो एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, सो इन दिस फिगर 6.18, इफ LM इज पैरेलल टू CB एंड LN इज पैरेलल टू CD, मतलब ये जो साइड है LM, ये CB के पैरेलल दे रखा है, और ये जो LN है ये CD के पैरेलल दे रखा है ना। एरो जो है ये बताता है कि ये दोनों लाइन पैरेलल, यहाँ पे डबल एरो मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल। Now we have to prove that AM by AB, okay, AM by AB is equal to AN by AD, right? तो देखो अभी तुरंत हम लोगों ने एक क्वेश्चन में प्रूव किया था कि ये दोनों अगर पैरेलल है तो AM by AB will be equal to AL by AC, ठीक है। और सिमिलरली इस ट्राइंगल में बात करो ADC में, तो वहां पे AN by ND is AL by AC। वो आने के बाद हम लोग इसको बेसिकली दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमारा ये जो प्रूफ करना है ये निकल आएगा। तो पहले ऊपर वाला ट्राइंगल लेते हैं ABC, ठीक है। सो इफ वी टेक दिस ट्राइंगल फर्स्ट, in triangle ABC, since LM is parallel to CB, so we will get AL by LC is AM by MB. This is by basic proportionality theorem. Similarly, since LN is parallel to CD, we have AL by LC is equal to AN by ND. Same basic proportionality theorem. This is your first equation, then this is your second equation. So if you combine both the equation from 1 and 2, we have, देखो दोनों में ये LHS जो है AL by LC के बराबर है, तो हमें क्या मिल जाएगा, AM by MB is equal to AN by ND, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें रेसिप्रोकल लेके 1 ऐड करके वापस रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा रेसिप्रोकल। अब अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पे तो हमारा MB by AM और इसमें 1 भी ऐड कर दो इज इक्वल टू ND by AN प्लस ऑफ 1, ठीक है। रेसिप्रोकल लिया एंड ऐड 1, तो अब ये हो जाएगा हमारा MB प्लस AM by AM इज इक्वल टू ND प्लस AN by AN। अब उसको फिर रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये आ जाएगा। सो फिर से हमने रेसिप्रोकल ले लिया, AM by AM प्लस MB करेंगे तो AB आ जाएगा, AM by AB इज इक्वल टू AN by AD। यही प्रूफ करना था। क्लियर है बच्चों? लिख लिया सभी ने? क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. जस्ट लिख लिया? Yes, sir. मैं बस वो फिगर एक बार बना रहा हूँ।
अच्छा, तुम लोग का ना एक टेस्ट लेना है मुझे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का तुम लोग का टेस्ट लेना है। हुआ नहीं है ना इसका टेस्ट अभी? No, Thank you, sir. sir. Yes, sir. सो ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का तुम्हारा टेस्ट होगा। आज कौन सा दिन है? आज टुडे इज वेडनेसडे, राइट? Yes, sir. 18th आज. तुम लोग का एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहा है सभी का? First, 15. sir. 27. 23rd. सर मेरे स्टार्ट हो चुके हैं आज। मैं 28 फ्राइडे को। ठीक है। So मतलब next class में ना. हाँ जी, नेक्स्ट क्लास में। Sir, bye, sir. है बाय? क्यों बाय कर रहा है? Sir अभी time नहीं हुआ. 5 मिनट बाकी है बालक। बाय करने पे जल्दबाजी में है भाई। ओके, नाउ अभी क्या है कि तुम लोग को घर पे ये 4 क्वेश्चंस हैं, लिख लो इनको, तो तुम कर ही लेना। उसके अलावा यू कैन प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स। ये 4th वाला क्वेश्चन है, तुम्हें करना है, ठीक है? 5th करना है, 6th करना है, 9th करना है और 10th करना है, ठीक है? तो 4th, 5th, 6th, 9th एंड 10th। Okay, sir. Yes, sir. तो ये 5 क्वेश्चन हैं, ये कर लेना। अगली क्लास में टेस्ट है, उसके अगली क्लास में इसके आगे हम लोग सिमिलैरिटी के जो थ्योरम्स हैं उस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। Sir ये question मतलब हमें homework में करने हैं ना? हाँ जी, वर्क में करने हैं। अगर नहीं होगा तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है sir. ठीक है, चलिए, बाय एंड टेक केयर एवरीवन। Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir.